Okay, good afternoon, class. In the previous lecture, we have discussed about universal quantification or universal quantifier. It is required for predicate logic. As I have told you, for predicate logic, we use two type of quantifiers. One is called universal quantification, and the other one is called existential quantification. Okay, and in addition to this, we have to include the predicates with their universe of discourse or domain. Okay, so now we are going to talk about this existential quantifier. Okay, first of all, many mathematical statements asserts that there is an element with a certain property. As I've told you, whenever we are saying property, property means predicate, because any predicate is a property or attribute that the subject of the statement will have. Okay. So therefore, from this we can say that many mathematical statements assert that there is an element with a certain property. It means there is at least one element that will show or that will reflect the corresponding attribute or property, or that for which the given predicate is true. If it is so, this will be represented by existential quantification. Okay. In universal quantification, I have told you that the property or the predicate will be true for each element of the domain. But now we are saying that there exists an element with a certain property. That means the given predicate is true for at least one value or one element of the given domain. In that condition, we have to use existential quantification. Okay. Here we are saying with existential quantification, we form a proposition that is true if and only if px, yani कि the given predicate, is true for at least one value of x in the domain. जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में क्या है कि द गिवन जो भी आपका प्रेडिकेट है दैट विल बी ट्रू फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन. So here we are talking about at least one, but not all. But in case of universal quantification, we are saying that it is true for all the values of x. So this is the difference of this universal and existential quantification. Okay. So whenever we are talking about all, we have to use universal quantification. And whenever we are saying for this some or at least one, then we have to use existential quantification. Okay, any queries? Now, the existential quantification of Px is the proposition, and that will be read as there exists an element x in the domain such that Px. आपको याद होगा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में मैंने बोला था फॉर ऑल एलिमेंट्स x in the domain such that Px. अभी हम बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन द डोमेन सच दैट Px, यानी कि जो गिवन प्रेडिकेट है इट इज ट्रू फॉर सम एलिमेंट्स x इन द डोमेन. ओके, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है, दैट इज e इन दिस रिवर्स साइड, दैट इज दिस इज फॉर द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. ओके, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं. यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के लिए हमने ये सिंबल यूज किया था ए रिवर्स में, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं. तो वी यूज द नोटेशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स फॉर द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी एक्स. हियर दिस इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. ठीक है, तो इसको हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं. तो ये इसका सिंबल है. तो अगर आपका जो भी प्रेडिकेट है
उससे पहले क्वांटिफिकेशन किया गया है और वो क्वांटिफिकेशन ये है, तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो देन इट इज कॉल्ड टू बी एज यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। Now, again, here also we are saying that a domain must always be specified when a statement there exists xpx is used. तो here also we have to specify the domain, जिसको हम universe of discourse भी बोलते हैं. तो we have to specify the universe of discourse with any quantified statement, whether it is with existential quantifier or with universal quantifier. Furthermore, the meaning of there exist xpx changes when the domain changes. अगर हम डोमेन को चेंज करें तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. यही स्टेटमेंट मैंने उसमें भी बोला था आपको यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में, कि अगर हम डोमेन चेंज करते हैं तो जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है उसके मीनिंग में चेंज हो जाता है. विदाउट स्पेसिफाइंग द डोमेन द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट xpx हैज नो मीनिंग. Okay, so whenever we are using quantified statement, we have to mention what is the domain or what is the inverse of discourse we are talking about. Okay. The existential quantification there exist xpx, इसको हम रीड करते हैं जो मैं अभी बोल रहा था. There is an x such that px, or there is at least one x such that px, or for some x px. तो ये डिफरेंट वेज है इसको रीड करने के. तो आप कैसे भी इसको रीड कर सकते हो. You can read it as for some x px, or you can read it as there exists an x such that px, or you can read it as there is at least one x such that px. So these all are the names for this existential quantification. Besides the word there exists, we can also express existential quantification in many other ways, such as using the words for some, for at least one, or there is. तो ये कुछ और टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं इंग्लिश में इस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए. ओके. यस, एनी क्वेरीज अप टू दिस? Any one of you? Okay. Now here we are listing out the truth value for these quantifications or the quantifiers. तो यहाँ पे हमने पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए. तो दिस इज फॉर ऑल एक्स पी एक्स. तो ये ट्रू कब होगा? तो दिस इज ट्रू, पी एक्स इज ट्रू, प्रेडिकेट पी एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स. अगर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए पी एक्स ट्रू है तब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होगा. और ये फॉल्स कब होगा? तो इफ इट इज फॉल्स फॉर एन एक्स, ये एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए भी अगर फॉल्स है ये पी एक्स, तो ये जो आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. तो देयर इज एन एक्स फॉर विच पी एक्स इज फॉल्स. एक भी वैल्यू एक्स की ऐसी है जिसके लिए पी एक्स फॉल्स हो तो ये आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स होगा. In the same way, we can define the truth value for existential quantification. And here we are saying that for existential quantification, it will be true if there is an x for which px is true. अगर हमारे पास एटलीस्ट एक वैल्यू एक ऐसी है x की जिसके लिए px ट्रू हो तो देन दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विल बी ट्रू. And when it is false, so it will be false if it is false for each and every value of x. यानी कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू ना हो आपके पास जिसके लिए px ट्रू हो तो देन इट विल बी फॉल्स.
तो यू कैन लुक एट द सिमिलरिटी। यहाँ पे फॉर ऑल में ट्रू कब है, जब सबके लिए ट्रू है, और एग्जिस्टेंशियल में फॉल्स कब है, जब सबके लिए फॉल्स है। ओके, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वी हैव यूज्ड, as you studied in the previous class, for universal quantification we have used conjunction। अगर हम डोमेन के एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं तो सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए जो प्रेडिकेट है उसकी वैल्यूज का हम कंजंक्शन लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कंजंक्शन ट्रू तब होता है जब सभी ट्रू हो, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में जितने भी आर्गुमेंट्स है, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हैं डोमेन के करेस्पॉन्डिंग, तो वो सभी वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी आपका क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होगा। द सेम इज फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन। यहाँ पे डोमेन की सभी वैल्यूज के लिए अगर फॉल्स है तो ये इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगा, क्योंकि ये डिसजंक्शन के साथ लिखा जाता है, और डिसजंक्शन जो है फॉल्स तभी होता है जब सभी फॉल्स हो। एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक, नाउ let us say this one. Let px denote the statement x is greater than 3. What is the truth value of the quantification there exists x px where the domain consists of all real numbers? True. Was it true? True. Okay, anyone else? तो here the predicate is x is greater than 3, है ना, और जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो है देयर एग्जिस्ट x px। तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू, जैसे मैंने अभी बताया, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू तब होती है दे इफ देयर इज एक्स फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई एक्स है जिसके लिए पी एक्स ट्रू हो? तो वी हैव मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज रियल नंबर। तो वी हैव मेनी रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 3, and therefore this quantified statement will have a truth value true here। For example, x की वैल्यू 4 ले ले तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 is greater than 3, and hence this will have a truth value of true। Yes, are you getting my points? In the same way, tell me what is the truth value of this? Here qx denote the statement x equals to x plus 1. We are asking for the truth value of this quantified statement there exists x qx where the domain for x consists of real numbers। So false ही होगा ये. False. False। Yes, anyone else? So tell me whether it is possible to get a real number for which x equals to x plus 1। क्या हम कोई एक एक भी ऐसा रियल नंबर बता सकते हैं x जिसके लिए x इक्वल्स टू x प्लस 1 हो? इट इज नॉट पॉसिबल, Yes or no, sir? है ना। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है x जिसके लिए x इक्वल्स टू x प्लस 1 हो जाए। दैट्स वाई द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन यूज होता है तो वो फॉल्स तभी होता है व्हेन इट इज फॉल्स फॉर
each value of x. तो x की हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, x equals to x plus 1, where x is a real number. And that's why the truth value for this quantified statement will be false. Is it okay? So in the same way, if we consider the points that we have discussed earlier, when all the elements in the domain can be listed, let us say x1, x2, xn, the existential quantification is same as the disjunction. जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को कंजंक्शन के साथ लिखते हैं, ऐसे ही हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन को जो है डिसजंक्शन के साथ लिख रहे हैं, इफ वी कैन लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। क्योंकि डिसजंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ट्रू होगा अगर एक भी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए, और ये फॉल्स होगा जब सभी के लिए फॉल्स हो। और यही हमने देखा कि ट्रूथ वैल्यू में कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में यही प्रॉपर्टी होती है। वो ट्रू तब होता है इफ देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज ट्रू, और वो फॉल्स तब होता है इफ इट इज फॉल्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी रिप्रेजेंटेड विथ डिसजंक्शन। Now look at this. Tell me what is the truth value? As you know, universe of discourse means domain. डोमेन को ही हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4, यानी कि जो डोमेन है उसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो इट विल बी 0 1 2 3 4। सर ये तो होगा सर, ट्रू होगा सर। ट्रू। नहीं सर, कुछ के लिए ट्रू होगा, कुछ फॉल्स होगा सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? The first thing I am asking the truth value of this quantified statement, है ना? तो जब भी हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का मतलब ही यही होता है कि जब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा हो तो उस केस में देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर विच पी एक्स इज ट्रू। यही तो है, तो दैट इज ट्रू। P4 में सर ट्रू होगा, बाकी यस, P1 फॉर P0 P1 हाँ, P2 नहीं होगा। yes, for px equals to 4 this quantified statement is true, क्योंकि 4 के लिए 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड 16 इज ग्रेटर देन 10। तो दैट्स व्हाई दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ट्रू तब होता है इफ इट इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, और फॉल्स तब होता है इफ इट इज फॉल्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसलिए इसको ट्रू होने के लिए x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए प्रेडिकेट ट्रू, एंड दिस प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर x इक्वल्स टू 4। ओके, दैट्स व्हाई दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विल हैव अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू। देखो यहां आप इसमें जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, तो दैट इज नॉट ऑफ कंसर्न। आप जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं, है ना? तो आप देखो P0 P1 P2 P3 ये सब ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, और क्योंकि ये डिसजंक्शन के साथ लिखा हुआ है तो इसलिए, मतलब सॉरी,
ये सभी फॉल्स हैं, P0, P1, P2, P3, लेकिन एक ट्रू है। और डिसजंक्शन में क्या होता है, एक ट्रू हो तो चाहे जितने भी फॉल्स हो, रिजल्ट हमेशा फॉल्स ट्रू होता है। सर डिसजंक्शन सर जीरो से नहीं लिया होगा ना सर, क्योंकि जीरो जीरो भी आप ले में सकते हो। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है आपका। पॉजिटिव इंटीजर सर वो कहाँ आता है? जीरो को हम हाँ, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में बोल सकते हैं सर। तो यस जीरो के आगे पॉजिटिव लगा दो नेगेटिव लगा दो तो जीरो रहेगा ना। यस, मैंने वही बोला आपको कि आप जीरो भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मानते, है हाँ ना। सर सर सॉरी तो सर। इसलिए आप इसमें जीरो इंक्लूड कर भी सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो सेट ऑफ इंटीजर में प्लस माइनस दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन जीरो में हम साइन जी यूज जी नहीं करते, तो इसलिए हम इसको दोनों में भी रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी रख ओके सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं। ओके सर ठीक है, तो अगर आप इंक्लूड करते हो तब भी आपका करेक्ट है, नहीं करते हो तब भी आपको कंसिडर वो किया जाता है। ओके, सर। तो क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी डोमेन के सभी एलिमेंट को हम लिस्ट आउट कर सकें, तो उस केस में हम उन सभी इंडिविजुअल वैल्यूज का डिसजंक्शन लेते हैं। और डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एक भी ट्रू है तो पूरा ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स केवल एक केस में होगा जब सभी के लिए फॉल्स हो। ठीक, तो क्योंकि P4 जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, क्योंकि P4 का मतलब हो गया 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 10, और 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 ग्रेटर देन 10, दैट इज ट्रू। तो therefore this quantified statement will be true. Okay, so now based on this, now we are going to talk about precedence. जैसे हमने जब हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया था, और प्रेसिडेंस में आपको ये बताया गया था कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं उनका प्रेसिडेंस इस तरीके से है। लुक एट दिस, सबसे हाईयर प्रेसिडेंस हमने लिया था निगेशन का, फिर हमने अगला लेवल लिया था कंजंक्शन और डिसजंक्शन का, और सबसे लोअर प्रेसिडेंस था इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल का। अब हमें इसमें ये दो जो क्वांटिफायर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो क्वांटिफायर्स हैं इनका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है। तो अब ये आपका प्रेसिडेंस रिलेशन हो गया, फर्स्ट प्रेसिडेंस इसका, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ ये। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है क्वांटिफायर्स का होता है, और लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल्स का होता है। तो इस प्रेसिडेंस रिलेशन या इंफॉर्मेशन से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जो कनेक्टिव्स हैं उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ तक होगा। ठीक, जैसे आप इस एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को रिलेट कर सकते हो। लुक एट दिस, सपोज ये गिवन स्टेटमेंट है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ये, तो इस स्टेटमेंट में इस प्रेसिडेंस रिलेशन से हमें हियर वी आर, इस स्टेटमेंट में इस प्रेसिडेंस रिलेशन से हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये जो है इसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए अगर आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले हमें क्वांटिफिकेशन करना है और उसके बाद इसके साथ डिसजंक्शन लेना है, क्योंकि क्वांटिफायर का प्रेसिडेंस जो है वो डिसजंक्शन के प्रेसिडेंस से ज्यादा है। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, न कि इस तरीके से। ये जो क्वांटिफिकेशन है ये इस पूरे पे नहीं है, ये केवल पी पे है। ये
हम इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज वी नो दैट दिस क्वांटिफायर हैज हायर प्रेसिडेंस देन दिस डिसजंक्शन। ठीक, जैसे आपने पढ़ा है ना कि 2 into 3 + 4, since we know that the multiplication has precedence over plus, so that's why we have to simplify this multiplication first. In the same way, since we know that this connective or uh, this quantifier has higher precedence than this disjunction sign, therefore we have to imply this quantification first and then after disjunction. अगर हम इस पूरे पे क्वांटिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें ये पैरेंथेसिस एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा. Then only this quantification can be applied over disjunction of these two predicates. और अगर हम बिना ब्रैकेट के यूज कर रहे हैं तो उस केस में केवल P के ऊपर क्वांटिफिकेशन अप्लाई होगा, Q पे अप्लाई नहीं होगा. Okay, so this is the significance of this precedence of logical connectives, or you can say precedence of this quantifiers. ओके, तो ये आपका प्रेसिडेंस इंफॉर्मेशन है. सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है ये हायर प्रेसिडेंस है इसका, और उसके बाद सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है इसका. ओके, सो हियर मूविंग अहेड, इसी में हम एक चीज और डिफाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज बाइंडिंग वेरिएबल्स. तो ये डेफिनेशन है इसका. व्हेन अ क्वांटिफायर इज यूज्ड ऑन द वेरिएबल x, we say that this occurrence of the variable x is bound. ठीक है, तो अगर हम किसी वेरिएबल पे क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल का जो अकरेंस होगा वो बाउंड कहलाएगा, या उस वेरिएबल को हम बाउंड वेरिएबल बोलेंगे. लेकिन अगर किसी वेरिएबल का अकरेंस जो है किसी क्वांटिफायर से बाउंड नहीं है तो उसको हम फ्री वेरिएबल बोलेंगे. इसका क्या मीनिंग है? तो लेट अस से ये है, मान लो आपने ये लिखा है फॉर ऑल एक्स पी एक्स कॉमा वाई. पी एक प्रेडिकेट है और ये जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई. ठीक, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिफिकेशन हो रहा है वो केवल एक्स का हो रहा है, तो इसलिए यहाँ x जो है वो बाउंड वेरिएबल होगा और y जो है वो फ्री वेरिएबल होगा. बिकॉज दिस y, the occurrence of variable y is not bound by any quantifier, that's why y is a free variable but x is a bound variable. So this is the meaning of bound and free variable. Clear? ये एग्जांपल लिया हमने. एक दूसरा एग्जांपल, मान लो कोई स्टेटमेंट है आपका, देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1. तो इसमें जो है आपका एक्स वेरिएबल बाउंड हो जाएगा, वाई वेरिएबल फ्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे हमने क्वांटिफिकेशन किया है लेकिन वाई का क्वांटिफिकेशन नहीं किया है. ओके, yes, anyone having doubts up to this you can ask.
Yes, any doubts up to this? Yes, any queries? Okay, so let us move to the next topic. Now, next we are going to translate the sentences using this predicate logic. अभी मैंने आपको ये बता दिया कि प्रेडिकेट लॉजिक में हम कैसे प्रेडिकेट्स को यूज करेंगे, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होगा, क्वांटिफिकेशन हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इन सबको यूज करने जा रहे हैं टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस यूजिंग दिस प्रेडिकेट लॉजिक। ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज हमें इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपका, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस using predicates and quantifiers. This statement cannot be translated with propositions, और रीजन आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि देर इज नो वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट दिस एवरी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफिकेशन हो रहा है और इस क्वांटिफिकेशन को हम प्रोपोजिशंस अलोन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। ओके, तो सेंटेंस है आपका, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। सो हाउ टू ट्रांसलेट दिस? तो मैंने आपको बताया था जब भी हम प्रेडिकेट लॉजिक यूज करते हैं हमें तीन चीजों को ध्यान रखना होगा। पहला, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यानी कि डोमेन, दूसरा प्रेडिकेट, और तीसरा क्वांटिफिकेशन। तो ये तीनों मिलके जो है प्रेडिकेट से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द डोमेन हियर। जो भी हम प्रेडिकेट वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं उस वेरिएबल का यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है या डोमेन क्या है, ठीक। अगर हम x वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उस x वेरिएबल का डोमेन या तो हम यूज करें कि x डिनोट स्टूडेंट इन दिस क्लास, let me write by this way. If we are saying x denotes student in this class, ठीक है, तो इस केस में हमें एक प्रेडिकेट लेना होगा, लेट अस से p x, and then this px will denote x has studied calculus,
as I have told you, predicate means any property or attribute. तो ये इस x वेरिएबल का प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है कि दैट x हैज स्टडीड कैलकुलस. Okay, if the domain for variable x denote student in this class, in that case there is need for one predicate, and that is, let us say, px, where px denote x has studied calculus. Okay, now the corresponding translation of this statement will be for all x for all x px. This is the translation for this statement. तो जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, आपको तीन चीजें मेंशन करनी होती है. डोमेन यानी कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, ये हमने बता दिया. प्रेडिकेट, इसमें हमने ये प्रेडिकेट यूज किया. और फिर क्वांटिफिकेशन, तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी, मीन्स ऑल. ओके, अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था कि जब हम यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट चेंजेस व्हेन द डोमेन इज चेंज्ड. अब यहाँ पे जो हमने डोमेन लिया था x, दैट इज स्टूडेंट इन दिस क्लास, अगर हम इस डोमेन को चेंज कर दें और अब हम डोमेन ले रहे हैं कि x डिनोट अ पीपल, x डिनोट द पीपल और पर्सन. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अगर हम x का डोमेन जो है द पीपल या द पर्सन ले रहे हैं या द ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, तो उस केस में इस स्टेटमेंट में दो प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट का मतलब प्रॉपर्टी होता है. तो अब उस पीपल की दो प्रॉपर्टी है कि वो पीपल उस स्टूडेंट क्लास का स्टूडेंट है, और दूसरा द पीपल हैज स्टडीड कैलकुलस. ठीक, तो देयरफॉर हियर नाउ वी रिक्वायर टू प्रेडिकेट्स. लेट अस से एक हमने एक प्रेडिकेट p ले लिया, px. तो हियर px डिनोट x is a student in this class. और एक दूसरा प्रेडिकेट लेट अस से हमने q ले लिया. जैसा मैंने बताया था, प्रेडिकेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट. तो ये x वेरिएबल की प्रॉपर्टी है कि x जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट है या x हैज स्टडीड कैलकुलस. तो दैट्स व्हाई नाउ वी रिक्वायर टू प्रेडिकेट्स. तो हियर qx डिनोट x is, sorry, x has studied calculus. So this is the thing that we are saying earlier, that the meaning of the quantified statement changes when we change the domain. पहले हमने डोमेन लिया था कि x जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, स्टूडेंट इन दिस क्लास. तो उसमें इसका मीनिंग ये था. अब x अगर कोई पीपल डिनोट कर रहा है तो उस केस में हमें ये दो प्रेडिकेट्स की जरूरत होगी. और नाउ what is the translation of this statement? Based on this information, tell me
what is the translation of this statement using this information? Yes, any one of you? You can raise your hands. Whoever wants to answer, you can raise your hand. I will unmute you. What is the formula? Yeah, what is the translation for the sentence every student in this class has studied calculus using this predicates? Any one of you? So first thing, you can think of this statement. ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस, इसको हम इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं. फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, if x has no if x is a student in this class, then x has studied calculus. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं. फॉर ईच x, if x is a student in this class, then x has studied calculus. इसमें इफ देन क्यों यूज कर रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि बीइंग स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज सफिशिएंट टू से दैट ही और शी हैज स्टडीड कैलकुलस एज पर दिस गिवन स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है इस क्लास का, इसका मतलब उसने कैलकुलस पढ़ रखा है. तो दैट्स व्हाई दिस विल imply to this one, because this is the sufficient condition for this. Obviously there are some students also who have studied calculus but not the student of the class. लेकिन अगर वो इस क्लास के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब उसने कैलकुलस पढ़ रखा है. इस सेंटेंस का मीनिंग ये है. ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो है इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन ये इसके लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो इस क्लास का है तभी उसने कैलकुलस पढ़ रखा. कोई दूसरी क्लास का है तो वो भी कैलकुलस पढ़ सकता है ना. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज द सफिशिएंट फॉर दिस वन, बट दिस इज नॉट द नेसेसरी फॉर दिस. ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट वी हैव टू यूज हियर इम्प्लीकेशन, जिसमें ये इसको इंप्लाई कर रहा है. तो नाउ द फॉर्मूला विल बी फॉर ऑल एक्स, जैसा मैंने बोला, फॉर ईच एक्स, if x is a student in this class, then x has studied calculus. So this is the meaning of the statement, that the meaning of the quantified statements will be changes when we change the domain. देखो, पहले हमने डोमेन जब ये लिया था तो उस केस में इसका ट्रांसलेशन ये था. जब हमने डोमेन चेंज कर दिया तो अब हमारा ट्रांसलेशन ये है. तो इट्स अप टू यू कि आप डोमेन क्या ले रहे हो. That's why I'm saying that whenever we are using any quantified statement, it is compulsory to mention the universe of discourse or the domain. Without domain, have it will have no meaning. The quantified statements have no meaning without specification of the domain.
Okay, so that's why it is compulsory to mention this. तो आप यहाँ लिखोगे let X denote the people or the person or the human being. Then we have to use these two predicates. Px ले लिया हमने, X is a student in the class. Qx ले लिया हमने, X has studied calculus. And then only the formula will be this for the given statement or the sentence. Yes, anyone having any queries up to this, you can ask. Any doubts up to this point? तो यहाँ पे ये और ये दोनों ही ट्रांसलेशन सही है, but the thing is that we have to mention the domain accordingly. Okay, so that's all for today. We will continue this in the next class. Thank you all.